Hello everyone, welcome to Infosec Tales with Gaurav Batra. Today we have with us Mr. Rakshit Tandon. He is very well-known cybersecurity evangelist who has been more than a decade of experience in security domain. He is a cybersecurity consultant to the Internet and Mobile Association of India. He has been marked as a resource visiting faculty for cybercrime investigation at Bureau of Police Research and Development for training law enforcement officers across the country. Member advisory to National Cyber Safety and Security Standards, Cybercrime Cell, Cyber Peace Foundation. He has been invited as keynote speaker and panelist at various national and international conferences, including TEDx and talks at Google. Director and co-founder HackDev Technologies Private Limited, Hackershala, CodeSnag, and Hacking Brawl. Played an important role contributing to child online protection in India report by UNICEF. He has been awarded with Karamveer Jyoti Puraskar, Gurugram Achiever Award, Cyber Guru of the Year Award by Government of Maharastra, and many more such awards. In his personal capacity, he has sensitized more than 4.5 million students on the issue of cyber safety across the nation, covering more than 26 states and 4 union territories. He inspires millions of students and professionals across the globe every day. So, Mr. Rakshit Tandon, welcome to the Infosec Tales with Gaurav Batra. Namaskar. Thank you so much for inviting me. So, Cyber Guru Award 2015. It's quite a big one, right? So my audience, of course, definitely like to know the tales behind it. Before being the cyber guru, what was Rakshit Tandon all about and how your cyber journey started? So, Gaurav ji, I don't know how much time do you have, but it's a long story. I'll try to cut it short and brief. I wanted to be a doctor, aspiring, coming from a medical background family. My father, my grandfather, my great grandfather, and my great great grandfather. Everybody has been a very popular, eminent doctors. My uncle, my Tauji, my younger brother, he is a doctor. He's serving in armed forces, and he's a doctor. So it was like the whole wave was कि भैया डॉक्टर बनना है. जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, क्या करेंगे बड़े होके, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. डॉक्टर टंडन की फैमिली से आ रहे हैं, पापा भी डॉक्टर हैं, ताऊजी भी. और ये चलता रहा सिलसिला और हम उसी लाइंस पे चलते रहे. हमारा मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है और हम वहाँ पे रैगिंग के शिकार होते हैं और हम वो छोड़ के भागाते हैं एक हफ्ते के अंदर. अरे हमने कहा हम नहीं कर सकते, हमारे बस का ही नहीं है. और टिपिकल आप सोचिए 91 92 में मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के, और हमने आके फादर से कह दिया, हम पे जितने पैसे बचे थे हमने बस पकड़ी एंड आई केम बैक टू माय होम टाउन एंड आई वाज लाइक अ ब्लैक शीप कि बोले अब तो तुम जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम क्या करोगे, तुम कंपाउंडर बनोगे. मैंने नहीं साहब, आई वांट टू गो इन कंप्यूटर्स. और किसी ने नहीं समझा उस समय उस बात को, और हमने वो वहाँ से जो जर्नी शुरू करी इन गेटिंग इनटू मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. और वो जो कंप्यूटर में मेरा पैशन आया कि विद इन द 6th month of my training I was training the trainers who were training me, and I became so passionate in programming, and they used to call me a compiler that time कि तुम compiler हो. मतलब the teacher used to give a problem, a code of say 200 lines, और मैं verbally उसको solve कर देता था without a paper, pen or a computer. And that was my starting point when I realized कि यार this is my love, this is what I was looking for. और एक आदमी इंस्टीट्यूट में अपने डेजिग्नेटेड आवर्स के लिए जाता है, मैं वहाँ 18 घंटे जाने लगा, राइट. उसके खुलने से लेके कॉलेज के बंद होने तक आई यूज टू बी देयर. और मैं साइड में खड़ा रहता था, जैसे वो खड़े रहते ना, नीडी थर्स्टी, कि अगर मशीन खाली होगी तो मुझे दे देना, क्योंकि दैट टाइम आई डिडंट हैड अ कंप्यूटर एंड आई वांटेड टू प्रैक्टिस एज मच एज आई कैन. आई कुड प्ले विद कंप्यूटर्स, आई कुड हैक इनटू द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि आई कैन थिंक लाइक अ हैकर, कि मैंने उसका कोड ही बदल दिया, कमांड्स चेंज कर दिए. और मैं टूल्स खोल के, पीसी टूल्स आता था उस समय, पूरा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, CUI था. हम लोग C++ और बेसिक सीखते थे. और मैंने डी बेस, फॉक्स प्रो और लोटस 123 एक एप्लीकेशन आता था, इनको इंटीग्रेट करके ना छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाने शुरू कर दिए फॉर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. एंड माय फर्स्ट सैलरी आई रिमेंबर वाज 400 rupees. And then I jumped to 800, then 1200, then 32, and all these jumps took place in 4 to 5 months. Okay. And then the company realized कि no, he's much below 3200. And then after 8 or 9 months, the same company offered me a job of 25,000 rupees.
And in Which that, year you are talking about this? so Back I'm telling you the story which is started in 93, 94. 93, 94. That's a big amount that time, And right? then that was a big amount. I had a second-hand car. I had a Premier NE, Fiat की आती थी लंबी Yes, वाली. yes, yes, I remember. पहला मुझे उन्होंने स्कूटर दिया था LML Vespa, and then I got a car. Okay. And then I worked very hard. But I used to work 18 to 20 hours without sleep, and I was working. And then this company got shaken off in which I was working. So they had some internal disputes, and I again after 3 months only of this good salary, I was jobless. And my education was still going on. So that time that entrepreneurship thing came out, and I thought, let me start my own company. So my life partner, who's my life partner, their parents supported me and they gave me a space. They had a very big, huge commercial space in my hometown, and they said, you can start from here. My father's best friend, he supported me with some cash amount. I remember buying my first computer on a loan of 40,000 rupees, and I took a loan, another loan of 30,000 for a printer. And with this, me and my life partner, we both were not married that time. We started this company called Tandon Insight. Okay. And this was started in 95, 96. And in 97, I started a venture in a bigger place with a higher loan. And that was with, say, around 7, 8 computers. And I called it TSP, Tandon Solution Provider. And I started my own curriculum of teaching people office applications, programming. एंड दैट टाइम आई वाज प्लेइंग वेरी हार्ड विद इंटरनेट. तो इंटरनेट आ ही रहा था, एंटर हो रहा था. उस जमाने में 15-20 रुपए की एक ईमेल हुआ करती थी और पीओपी कनेक्शन होता था. वो छोटा सा मोडेम आता था, काले रंग का, लाल राइटे, उसमें टर टर आवाजें आती थी. Yes, yes, yes. और उस समय जावा स्क्रिप्ट और ऑर्कुट का बड़ा हल्ला होता था उस जमाने में, शुरुआत में 2004 के अंदर ऑर्कुट बहुत पॉपुलर. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. और मेरा फर्स्ट, मतलब आई बिकेम वेरी पॉपुलर विद माई इंस्टीट्यूट. आई डिड सम गुड बिजनेस, बट आई फेल्ड एज अ बिजनेसमैन एंड आई कुड नॉट रन दैट ऑर्गेनाइजेशन. आई हैड लॉट ऑफ लोन्स एंड डेट्स, so I was in a bad shape. So 2004, I was sitting and I was very popular though. I started using, and that was the first time I got a name, IT Guru. So Dainik Jagran, they started a story with me. They called a column IT Guru. Every Thursday it used to be printed, a huge column, around 7 to 8 columns with my small. And then you're telling this story in your hometown that time. Hometown, right? Only Agra. It was my hometown where it started. Okay. And I started teaching people how to play with applications on internet and how to use internet safely. And that column was called IT Guru. Okay. So, and then I was sitting in my computer center. It was a nice around 1,000 square feet center. We called it TSP. I had a staff of 8 to 10 people that time. And we had running students around 200, 300. And I had given a very tough time to these big private players like NIIT, EPTech. And they were all franchisees and I was the owner. I used to clean my center. I used to be the counselor. I used to be the lab assistant. And I used to be the teacher along with my wife. So she worked very hard to bring up that center. And then 2004, I was sitting in my office. A lady police officer entered and said, "Where is IT Guru?" So I humbly stood up and said, "Ma'am, I'm Rakshit Tandon and they have given me this tag IT Guru, but I'm not a guru." So बोले, नहीं रक्षित जी, आपकी मदद की जरूरत है. याहू चैट के ऊपर इस बच्ची को कोई ब्लैकमेल कर रहा है ना. वेरी यंग लिटिल गर्ल विद हर मदर वाज सिटिंग इन माय ऑफिस. And I was shocked, and then I spoke to that girl and I realized that how innocent she was to click on a chat, Yahoo chat messenger in a group, become a friend with someone, share some very personal information, and then this big boy became a stalker. That time, imagine 2004 beginning. Okay. ये फेसबुक कुछ नहीं था, पर्सनल मोबाइल्स तो आए नहीं थे. लोग डेस्कटॉप और उस पे बड़े स्लो कनेक्शन पे चैटिंग किया करते थे. याहू मैसेंजर आता था साइड में. I remember definitely. तो हमें बड़ा बुरा भी लगा उसकी स्टोरी सुन के, और अंदर से एक ट्रिगर हुआ कि यार ये तो बच्चे बड़े वल्नरेबल हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं. एंड उनकी बात करते करते आई ऑफर्ड अ कप ऑफ टी. मैं उस जमाने बड़ा शौकीन था ब्लैक कॉफी पीने का, और मेरे पास एक छोटा सा, फादर इंग्लैंड से आए थे, तो एक टीजमेट था, बड़ा बहुत स्मार्ट सा, कूल सा. उसको आप, उसमें एक नल निकला होता था, घड़ी लगी होती थी, और बड़ी सुंदर सी लैंप थी. वो मेरे ऑफिस टेबल पे रहता था. वो अपनी ब्लैक कॉफी पीता रहता था बना के. मैं तो वो मैंने मैम को ऑफर करी, 2 कॉफी लगाई, और मैंने खड़ी से मुश्किल 10 मिनट लिए
और उस बंदे को मैंने ट्रैक कर लिया। तो ये मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि आई कैन थिंक लाइक एन इन्वेस्टिगेटर। दैट वाज अ वेरी बेसिक एक्सपीरियंस। और मैंने बहुत सिंपल कमांड्स यूज किए डॉस के और नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स के और आईपी एड्रेसेस के, और मैंने कर लिया। वो लेडी ऑफिसर थी, शी वाज एडिशनल सीओ, उनको सर्किल ऑफिसर्स कहते हैं। ओके। एसपी रैंक होते हैं, एडिशनल एसपी रैंक। तो मैम ने, हमने ट्रेस कर लिया, मैम को डिटेल्स दी, और अगले दिन सुबह मैम का फोन आया, भाई रक्षित थैंक यू सो मच, वो पकड़ा गया बदमाश और वो बच्ची सेफ है, सुरक्षित है। उनके पेरेंट्स आए, दे वर वेरी थैंकफुल। और उस एक इवेंट ने हमें इतना पॉपुलर किया इन द पुलिस कम्युनिटी। देन आफ्टर दैट रेकरिंग होना शुरू हो गया पुलिस का, इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज, वेरी सिंपल इश्यूज। दैट टाइम वी वर नो हाई फाई क्राइम्स। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया, एंड दैट वाज अगेन अ बेंचमार्क इन माय करियर। इट वाज अराउंड 1.5 करोड़ की चोरी उस जमाने में, ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, और वो भी बाय इंसर्टिंग अ रॉन्ग कोड इन द कोडिंग। और उसके लिए भी आगरा बिजनेस फ्रेटर्निटी ने और पुलिस ने हमें सम्मानित किया था। और बस वो वहां जब शुरू हुआ तो मैंने क्या करा, वॉलंटरली स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं अपने होम स्कूल में गया जहां मैं पढ़ा था, तो मैंने वहां बच्चों से बात करी, एंड दैट वाज वेरी अप्रिशिएटेड। देन वो बढ़ता गया। तो 2008 में एक बहुत सीनियर ऑफिसर रैंक के थे, वो हमारे स्कूल में एक लेक्चर दे रहे थे, वो चीफ गेस्ट थे। ही वाज अ डीआईजी रैंक ऑफिसर, श्री कमल सक्सेना सर। So he was giving a chief guest speech on my school. मैं जहाँ का एलुमनाई हूँ, मैं अपने हर एलुमनाई प्रोग्राम्स में जाता था, स्पोर्ट्स डे और उस पर। तो वो वहाँ बोले कि साहब हम पुलिस को साइबर क्राइम में ट्रेन करना चाहते हैं। मैंने उनके मुंह से वो वर्ड सुना। अगले दिन सुबह मैं उनके ऑफिस पहुंच गया। आईटी गुरु तो मैं था ही, दैनिक जागरण मेरे साथ चले गए। वो कैंप ऑफिस में धूप में बाहर बैठे हुए थे, सर्दियों का दिन था, 2007 दिसंबर। और मैंने, सर आई हैव अ इंटेंशन टू ट्रेन योर पुलिस ऑफिसर, आई हैव दिस कैप्सूल क्रिएटेड, ये ऑर्कुट पे क्राइम हो रहे हैं और ये सब हो रहा है, बैंक की नकली वेबसाइट बना लेते हैं ये लोग, तो आई वांट टू ट्रेन देम हाउ टू ट्रैक एंड इन्वेस्टिगेट। तो उन्हें मेरा आइडिया बहुत पसंद आया, और फिर मैंने वो बच्चों वाले एग्जाम्पल्स दिए उनको कि मैं स्कूल्स में जाता हूँ, उनको ये इश्यूज आते हैं, ये होता है, वो होता है। तो उस समय भी एक केस हुआ था, बड़ा पॉपुलर था, ऑर्कुट उसमें इन्वॉल्व था। किसी ने शिवाजी महाराज के लिए कुछ उल्टा सीधा लिखा था और वो बंदा अरेस्ट हो गया था ऑर्कुट के ऊपर। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। तो वो सर ने सुना और बोले रक्षित कल आओ, फिर कल बात करते हैं। कल हम पहुंचे तो उन्होंने 2-3 फोन किए, एंड दैट इवेंट बिकेम अ नेशनल साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ कॉन्फ्रेंस फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस। 2000 officers were planned to attend that conference, and it took place on 7th and 8th of February, the turning point of my life. I was the key organizer, I was the key speaker, I was the person who brought all the personalities on one platform. तो उस समय मुझे पता था साइबर क्राइम में राकेश अग्रवाल सर थे, सीबीआई में पवन दुग्गल सर स्टार्टेड वर्किंग, श्री कृष्णा सर थे फोरेंसिक लैब हैदराबाद से, और डीसीपी साइबर क्राइम थे शैलेंद्र मिश्रा जो दिल्ली में थे, ये मंदिर मार्ग वाला जो साइबर सेल हुआ करता। इन सबको रोप इन करके, और गूगल ने हमें सपोर्ट किया, और IAMAI ने स्पॉन्सर कर दिया हमको थ्रू DIG रेफरेंस, एंड दैट 2 days मेगा इवेंट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। 2000 people attending a conference, full day conference with, I was doing the maximum presentations at JP Hotel. So I became popular with the police and I became a public figure. उसी 1-2 कॉन्फ्रेंस पर, दैट वाज द टेक ऑफ। अच्छा, हम तो बैठ गए, आके कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, अपने वापस TSP आके बैठ गए, अपना काम कर रहे थे। एक फोन आता है दिल्ली से, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, बोले जो आपने प्रेजेंटेशन दिया, आर यू विलिंग टू गो टू स्कूल्स एंड डू द प्रेजेंटेशन? मैंने यस आई बी विलिंग। बोले इट विल नॉट बी वेरी हाई पेइंग बिकॉज इट इज अ स्पॉन्सर्ड एक्ट, इट इज अ सोशल CSR एक्टिविटी, we are calling it safe surfing, and you have to speak to 2.5 lakh children in the country. 2.5 लाख बच्चों से बात करनी है, एंड दैट्स इट। बस वो हो गए, फिर वहीं से साइबर गुरु बन गए। हमने 1 साल मेहनत करी, पूरा हिंदुस्तान घूमा। कैसे कैसे घूमा वो मत पूछना, क्या हालत में घूमा ये मत पूछना। जाते थे, अपना बैनर लगाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और शुरू हो जाते थे और बच्चों को सिखाते थे। मेरा पहला सेशन हुआ सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर में। जयपुर से देन आई वेंट टू इंदौर, इंदौर से बॉम्बे, बॉम्बे से नागपुर, देन नासिक, एंड
करते करते आई डिड 1863 schools, 16 states and 63 cities, and I touched a figure of 2.5 lakh children in 1 year. So 2008, 2009, the safe surfing campaign. This is big. This is big. And then गौरव जी वो बस सिलसिला चलता चला गया. अच्छा, इस बीच में पुलिस का काम नहीं रुका, हम बन गए. अच्छा हाँ, एक बात रह गई यहाँ पे. 2000 वो जो फरवरी 8 में कॉन्फ्रेंस हुई, पहला उत्तर प्रदेश पुलिस का हमने साइबर क्राइम कंप्लेंट रिड्रेसल सेल बना. ओके. वो उसी कॉन्फ्रेंस से बना. डीजीपी साहब विक्रम सिंह सर ने उसको इनॉग्रेट किया. एसएसपी नवीन अरोरा सर थे, जो आज इस समय आगरा के कमिश्नर हैं. ही इज बैक, ही इज द आईजी. ओके. एंड दैट टाइम ही वाज एसएसपी 2008. ओके. और डीआईजी हमारे कमल सक्सेना सर थे. और हमारा पहला साइबर सेल बन गया. वो पूरे यूपी को फीड करने लगा. मैंने वहां की पूरी टीम को ट्रेन किया. एक एक केस हमने, कई किडनैपिंग के केस, इंटरनेट कॉलिंग के केस बहुत अच्छे अच्छे खोले. और वो हमें नाम और शोहरत देता चला गया और नाम बढ़ता चला गया और हम मदद करते गए. बस ये था कि वो पूरा फेज हमारा ये था कि इट वाज गिविंग बैक टू द सोसाइटी व्हाटएवर आई हैड लर्नड. सो इट वाज नॉट ऑन अ वेरी हाई कमर्शियल एंगल. I saw a very tough time. Because of that, I came into heavy debts. And then finally I had to wind off my whole company in 2015 at a very sad note. And then I came to Delhi in 2016. And then I became an independent consultant and advisor to you. And then I started getting work for UNICEF, UNODC. I became a faculty with CBI Academy. I did many projects like safe surfing for Facebook, WhatsApp. They were the companies who were supporting me, and that is where I regained myself. I would say commercially and financially. But हाँ, वो फिगर जो 2.5 लाख से शुरू हुआ था, वो आज करीब 40 से 42 लाख पहुंच गया है साहब. हमने तेलंगाना में बहुत बड़ा इवेंट करा, पंजाब पुलिस के साथ करा, और हमें सपोर्ट किया साइबर पीस फाउंडेशन ने. उनके थ्रू हमारी रीच इतनी बढ़ गई है कि अभी तो पंजाब में किया था हमने 30 लाख की ऑडियंस को एक बार में एड्रेस किया हुआ है. 30 लाख पीपल को हमने अवेयर किया. देखिए, ये मेरा मानना है कि साइबर अपराध, प्रिवेंशन इज बेटर देन इन्वेस्टिगेशन. आप इसे जितना अवेयर कर सकते हो लोगों को और जितना अलर्ट कर सकते हो, वो ही इससे बचा सकता है. वरना ये तो अब इस समय हर मोबाइल में घुस चुका है. मैंने ना आपकी एक फोटो देखी थी ऑनलाइन, जहाँ पे आपने पोस्ट किया था कि मेरा पहला स्टेज का एक्सपीरियंस. तो उसमें और आज में आपको कितना डिफरेंस आ रहा है? जब पहली बार स्टेज पे गए थे तो कैसा लग रहा था, और अभी? आई रिमेम्बर इट वाज अंबाला सिटी, okay, a girls college, and I was, as I mentioned, I was working for this company where I was on a high salary. Last 2 महीने 3 महीने की वो कंपनी डिमिनिश हो रही थी. इनका अंबाला सेंटर खुला था और इन्हें अपने कॉलेज में एंट्री चाहिए थी कि बच्चों को हम अपने कोर्सेज में कन्वर्ट कर सके, कंप्यूटर कोर्सेज में. तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बोलना था मुझे साहब. okay. और वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था. मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर था. मैं उस समय 42 लैंग्वेजेस के साथ काम करता था. मतलब यू गिव मी ओरेकल, ऑटोकैड, सी, पास्कल, कोबोल, बेसिक. मैंने बहुत लैंग्वेजेस के साथ बहुत प्यार था मुझे. तो मैं कहूँ कि सर मैं कैसे बोलूंगा. हमारे एमडी बोले नहीं रक्षित तुम जाओगे. और मैं अपना एक ब्लेजर, जो स्कूल वाला ब्लेजर और टाई लगा के, और हाथ ऐसे कांप रहे, और लड़कियां, वो पहला एक्सपीरियंस. अच्छा, एक होता है ना, आप मिक्स क्राउड हो. अच्छा, क्लासेस में तो बहुत पढ़ाया था, 30, 15, 20 बच्चे आ रहे हैं, तो वो तो अलग होता है. स्टेज का एक्सपीरियंस. तो वो होता है ना, हाथ बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको करंट लग गया है, माइक पे चिपक जाता है, झंझनाहट सी होती है. ओके. तो बस पता नहीं क्या ऊपर से भगवान का था कि हमने बोलना शुरू किया, एंड इट वाज सो वेरी वेल रिसीव्ड. और बस वो वहाँ पहला एक्सपीरियंस था साहब. लेकिन उस पहले एक्सपीरियंस ने हमें जो कॉन्फिडेंस दिया, उसके बाद तो फिर वो सिलसिला चलता ही रहा. और आज भी याद है मुझे, वहाँ बुलाया था गुजरात में, एक बहुत बड़ा शिविर लगता है, और उसमें आई स्पोक टू 25,000 स्टूडेंट्स इन ओपन ऑडिटोरियम. जैसे समाज वो होते हैं ना, बड़े बड़े वो बड़ा सा कैंप था, बहुत बड़ा टेंट था. उसको वो कोई नेशनल मिशन चलता है, उसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं अभी, वो भी आए थे एज अ स्पीकर. उस समय वो बिहार के गवर्नर थे, और आई वाज सो फॉर्चुनेट टू हैव अ लंच विद हिम इन द गेस्ट हाउस. वो वहीं रुके थे आके, और मेरा भी उस दिन सेशन था. मैंने 25,000 बच्चों से एक साथ बात करी है.
ओके। एंड इट वाज एन अमेजिंग टेक अवे। बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे, अरे घेर लेते हैं बच्चे अब ऑटोग्राफ्स। वो तो है। तो मतलब आपने जब शुरू किया अपना करियर, मतलब आपने पुलिस के साथ जब शुरू किया था, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगा कि बहुत केस बहुत मुश्किल है और उसको सोल्व करके मजा आ गया, मतलब यू फेल्ट प्राउड कि अगर ये केस मैंने कर लिया ना, ये मतलब जिंदगी में कुछ तो अचीव कर लिया है मैंने, कोई ऐसा केस जो आपको बहुत ही 2011 में, मतलब दैट आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड आई ऑलवेज बी हैव दैट ग्रैटिट्यूड फॉर नॉलेज कि ये जो भी हम लोग आजकल हैं, जो भी आप नाम देते हैं, कोई साइबर एक्सपर्ट बोलता है, कोई गुरु बोलता है, तो वो हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए अपनी लर्निंग्स और टीचिंग्स को, क्योंकि उसी नॉलेज की वजह से हम हैं। हम्म, तो 2011 में फर्स्ट इंसिडेंस था, अब तो खैर हमारे लिए रेगुलर सी बात हो गई है। हम्म, एक किडनैपिंग हुई, और उस किडनैपिंग में जो फिरौती मांगी गई थी, रैंसम, इट वाज यूजिंग अ वर्चुअल नंबर। आई ओके, डोंट नो इफ यू रिमेंबर, अब तो खैर हम लोग जानते हैं वीओआईपी, वो इंग्लिश इंग्लैंड और अमेरिका पाकिस्तान के हाँ वो वो नंबर सब, बना लेते हैं आजकल मोबाइल ऐप से। बट हम्म, उस जमाने में मोबाइल ऐप्स आ गए थे, लेकिन एक सिस्टम आता था, जैसे आप बाहर जाओ तो वहाँ कॉलिंग कार्ड्स मिलते थे, उन्हें स्क्रैच करो तो यू कैन मेक अ फ्री कॉल फ्रॉम दुबई टू इंडिया, लंदन टू इंडिया, ऐसा करके। यस, एक किडनैपिंग हुई एंड इट वाज अ सीरियस क्राइम एंड हीनियस क्राइम, बच्चे का मामला था। एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग फ्रॉम दीज नंबर्स, सो my cyber cell alerted, and that time I was continuing my cyber safe surfing का phase 2, and I was in Amritsar, ओके, एंड आई यूज टू डू फुल डे सेशंस, और दोपहर में वहाँ की पुलिस के साथ काम किया हमने, अमृतसर में डीआईजी साहब के साथ उनके कुछ केसेस वेसेस और उनकी टीम से बात करी। और मुझे आज भी वो शाम याद है, मैं रात को आके बस लेटा था, आई वॉज वेरी टायर्ड। पूरे दिन खड़े होके बोलना ह्यूज ऑडिटोरियम्स में, इधर से उधर, उधर से इधर, कंप्यूटर लगा के, और वो प्रेजेंटेशंस देना। एंड आई यूज टू डू 7 to 8 सेशंस बैक टू बैक, तो मतलब एक दिन में आई यूज टू कवर 8,000 चिल्ड्रन, 8,000 बच्चे। तो गला बैठ जाता था आपका बोल बोल के, और मेरी एनर्जी लेवल्स थोड़े हाई रहते हैं बोलने के टाइम पे। थका हुआ था, और मेरे पास फोन आया कि ये केस हो गया है साहब, और इंटरनेट कॉलिंग है। आई इमीडिएटली ओपन माई लैपटॉप, आई कनेक्टेड। मैं उस समय वो डोंगल चला करते थे रिलायंस के, उससे कनेक्टिविटी आती थी। मैं साइबर सेल से फोन पे कनेक्टेड था, और हम लोगों ने 27 जनवरी की घटना है, नहीं 22 जनवरी, और 22, 23, 24 को वो केस सॉल्व हो गया, मेरे अमृतसर में बैठे बैठे। अच्छा, उस समय मोबाइल पे ना आईएसडी और एसटीडी बहुत महंगी होती थी, बहुत महंगी। तो यू वोंट यस, बिलीव, आई स्पेंट इन 3 days समवेयर अराउंड 4,500 ऑन माई बिल। ओ, Four and a ओके, half thousand. So you can imagine, I was calling US, I was calling Europe, I was calling India, nodals, STDs, तब जाके and I figured out, and तब मैंने वो जो चीज सीखी, एक वॉइप कॉल को ट्रेस करना। तो जितनी भी उसके बाद मैंने एकेडमीज में, पुलिस में, मैं तो ऑलमोस्ट सभी एकेडमीज में जाता रहा हूँ, और मैंने बहुत पुलिस इंट्रैक्शंस किए हैं। तो मैं फिर उन लोगों को सिखाना शुरू किया कि भाई ये है हमारे पास इसका तरीका। और अब तो खैर, अब तो रोज की सी बात हो गई है, आजकल तो रोज ही हम्म, वॉइस कॉल्स और इंटरनेट कॉल्स वो चलती हैं। आ रहा है, हाँ। तो ये मेरे लिए उस समय एक था वाओ मूवमेंट कि यस, ये किया 2011 में। ओके। एंड आपका इस बहुत सारे जो आपने काम किए उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, कौन सा ऐसा अवार्ड है जो आपको बहुत मतलब पसंद है या आपके बहुत करीब है कि ये मुझे मिला और बहुत मैं अच्छा लगा इसमें? मेरे लिए सारे रिकग्निशन, सारे अवार्ड्स जो हैं गौरव भाई, वो मेरे को एक इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और एक हैप्पीनेस होती है अंदर से कि हाँ भाई। क्योंकि मेरे को वो टाइम याद है फेलियर वाला, जब everybody has lost hope कि what will I do for my career, and coming from a family background, so I have seen that phase. It was a very tough phase for me to just drastically change a career overnight. हम्म, मतलब आप सोचो कि एक मेडिकल फ्रेटर्निटी से आप अचानक से यू वांट टू बी इनटू कंप्यूटर्स, एंड दैट टू वेयर यू डोंट हैव एनी लेजिटिमेट क्वालिफिकेशन उस जमाने के हिसाब से। तो मेरे लिए तो हर अवार्ड बहुत बहुत, मेरा पहला अवार्ड था आगरा में, जो मुझे एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस ने दिया था, डीएलए, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर। उनका आज भी जो यूट्यूब पे वीडियो है ना, वो जिस आवाज़ में उसे डब किया गया और जिस तरह से मेरे बारे में बोला गया है। हाँ, और हाँ, एक बहुत बड़े कार्यक्रम में हमारे एक जज साहब, जज वो थे, चीफ जस्टिस है हमारे यहाँ के, वो चीफ गेस्ट थे, एंड आई वाज वन ऑफ द स्पीकर। और उन्होंने मेरा सेशन सुनने के बाद जो मुझे अवार्ड ही दिया, उन्होंने जो मुंह से बोला मेरे लिए अवार्ड से बड़ा था, बोले आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत सोच समझ के रखा, रक्षित।
आप आईटी की रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, रक्षित रक्षित रक्षित। तो वो मेरे ओह माय लिए गॉड। एक इतना, मतलब उनके मुंह से आना, वो भी इतनी बड़ी गैदरिंग में जहाँ सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तो ठीक है, मतलब मेरे लिए वो हर मोमेंट एक अवार्ड होता है जब मैं किसी विक्टिम की मदद कर देता हूँ। मेरी मदद से अभी एक लेडी हमारे यहाँ आई, बहुत डेस्परेट थी, उनका दिवाली के ऊपर 1,40,000 रुपये निकल गया, एंड दैट लेडी वॉज ओके। प्रेग्नेंट, एंड दैट शी हैड डिपॉजिटेड दैट मनी फॉर देयर चाइल्ड अपकमिंग एंड ऑल, और उस समय के टाइम में, ये दो साल पुरानी बात है, and with my alertness and the help of cybercrime cell, we could recover each and every pie of that lost money within time. तो वो जब इन लोगों की खुशी आती है ना, वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। मैंने ऐसे कितने बच्चे आते हैं, सर कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, किसी ने फेक आईडी बना दी, तो वो सब। बट हाँ, मेरे लिए एक एक अवार्ड जो मुझे मिला है, डीएलए आउटस्टैंडिंग से लेके साइबर गुरु, मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था जब मुंबई साइबर सेल ने और होम मिनिस्टर साहब ने हमें अपने हाथ से दिया था, मुंबई के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम में। फिर जो हमें ये सारे करमवीर चक्र मिले, वो हमारे लिए बहुत बड़े थे। फिर हमें इंडियन आर्मी से और इंडियन एयरफोर्स से जो हमें ऑनर्स मिले, फिर मुझे क्लास 1 सर्टिफिकेट्स मिले, मुझे सीबीआई से दो बहुत बड़े एप्रिसिएशंस मिले थे, एक केस के अंदर, वो मैं बता नहीं सकता, और एक ट्रेनिंग के लिए जिसमें मैंने पैलेस्टीन की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ट्रेनिंग दी थी, एंड दे अप्रिशिएटेड। तो मैंने सीबीआई के थ्रू पैलेस्टीन, कंबोडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब के जो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी, एंड आई हैव गॉट अ वेरी मतलब गुड फीडबैक्स, 10 out of 10 फीडबैक्स, वो मेरे लिए बहुत बड़े अवार्ड्स हैं। श्योर सर। आपकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आपने जैसे बताया। आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपके लाइफ पार्टनर ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया था। आप उनके रोल के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी लाइफ में कैसा है तो कुछ? यार, वो जैसे होता है ना, सही कहते हैं कि वो शुरू से कहते हैं, सक्सेसफुल मैन देयर इज अ हम्म। वुमेन। तो वही रोल प्ले किया वाइफ ने, बिकॉज शी वाज मोर क्वालिफाइड देन मी, एंड द वे शी हैड taken care of my business, and the way she helped me out through the whole journey. And then when I had 2 kids, और जब बच्चे बड़े हो रहे थे, देन शी सेक्रीफाइस्ड हर कैरियर, सेइंग कि नहीं, बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म। और पीछे से ये, हम तो मतलब आप समझिए 2008 से गायब ही हैं। अब जाके ये लॉकडाउन में पहली बार उन्होंने और परिवार ने हमें घर में देखा है, और अब इतना देख लिया है कि अब उन्होंने हमें एक अलग कमरे में बंद कर दिया है, बोले हम सुन ही नहीं सकते जो तुम बोलते हो। तो मेरा वही मेरा क्वेश्चन आ सारा रहा था कि काम ऑनलाइन बच्चे हो गया। बच्चे ज्यादा कंप्लेन करते हैं, आपकी वाइफ ज्यादा कंप्लेन करती है कि नहीं नहीं, बच्चे? कंप्लेन तो खैर कोई नहीं करता, लेकिन हाँ, असर तो पड़ता ही है जब क्राइम हाँ। क्राइम की आप बात करते रहो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं हमारे यहाँ, तो हम्म। असर तो पड़ता ही है। तो वो बहुत सपोर्ट किया साहब, पूरी फैमिली ने। और मैडम ने जो रोल प्ले किया था, जब हम बिल्कुल फेल हो गए थे, मतलब व्हेन आई हैड लॉस्ट माय बिजनेस एंड एवरीथिंग, तो वो जो उनका उस समय सपोर्ट फैक्टर था, दोनों, मतलब मॉरली और बाय वर्क, तो वो मेरे लिए, अगर वो नहीं होता तो शायद पता नहीं इतनी तेजी से हम वापस रीगेन नहीं कर पाते। तो मैं उसका पूरा क्रेडिट देता हूँ। और फिर बच्चों ने भी बहुत किया है हमारे लिए। हमारे बच्चों ने, क्योंकि देखिए, आई वॉज नेवर देयर फॉर देयर बर्थडेज, आई वॉज ट्रैवलिंग। ये मार्च 2020 तक अगर आप देखो, तो मैं हर एयरलाइन का फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ। हम्म। और मेरा टाइम टेबल ऐसा था, बल्कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, जैसे रितेश हमारा फ्रेंड है, वो तो कहता भाई रुक जाओ, थक जाओगे। वो ऐसे बात करता है कि तुम एयरपोर्ट पे ही घर ले लो अपना, क्योंकि वो आदत हो गई थी, चेक इन स्टेटस डाल रहे हैं अभी हैदराबाद में, फिर सुबह बैंगलोर में। तो अकेडमीज को हम कभी मना ही नहीं करते थे, वेस्ट बंगाल अकेडमी से लेके तेलंगाना अकेडमी तक मैं ट्रेनिंग्स के लिए गया हूँ, और वो बिल्कुल बैक टू बैक क्लासेस लेते थे, बिल्कुल भागा दौड़ी। हम्म। हाँ, अब ऑनलाइन में ये फायदा हो गया कि एक दिन में हम बहुत सारी जगह हो आते हाँ, हैं। एक जगह पे अब हो जाता है, यस। आज बहुत दिनों बाद, मतलब ये, हाँ, काफी केसेस में तो हम चले जाते थे, बीच में भी गए हैं जब बुलाया है पुलिस ने। बट ये जैसे आज जो एक कल रात को एक केस हुआ और उसमें हमें बुलाया, तो वो एक बहुत दिनों बाद हमारे लिए पूरे दिन की ड्राइव थी। आज मैं मॉर्निंग 7 o'clock गया हूँ और अभी 8:15 लौटा हूँ, और वो हम्म। करके आए ऑपरेशन। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा नॉर्मल होता जा रहा है चीजें, तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया है।
ओके सर, आपका स्टोरी से आप पता चल रहा है कि आपका जो बच्चों के लिए प्यार था और आपने जो ट्रेनिंग स्टार्ट किया, दैट इज फ्रॉम द 1995 ऑनवर्ड्स यू हैव डन। बट व्हेन यू थॉट कि ये जो बच्चे हैं इनको जो पढ़ रहे हैं साइबर में इंटर्नशिप करना चाहिए, आपने पुलिस के साथ मिलके बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए, आपने हैकरशाला शुरू किया, तो आपको क्यों लगा कि नहीं, ये जो आज के किड्स हैं दे शुड बी ट्रेन्ड अबाउट साइबर? तो So, हाउ दिस थिंग? Gaurav, as I mentioned that my first assignment was by Government of India to go and outreach to 2.5 lakh children. And हम्म। while I was doing this and I was traveling the whole country, it was not only I was restricting myself to North. अब मैं चेन्नई में गया हूँ और चेन्नई में मैंने जाके वहाँ के एक्सेंट में वहाँ पे सेशंस दिए, चेन्नई में, पुडुचेरी में, इन 2008 आई एम टेलिंग यू। तो आप मेरे एक्सपीरियंस को देखो कि मैंने कल्चरली, जोग्राफिकली समझ लिया कि साइबर में और बच्चों में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमियां हैं और क्या करना चाहिए। ये मैंने 2008-9 में सीख लिया था। तब हाथ में मोबाइल सबके नहीं आया था, ठीक है, ये तब का बता रहा हूँ। और वो सिलसिला रुका नहीं ड्यू टू द सेफ सर्फिंग फेज 2, देन वी गॉट अनदर प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, देन वी डिड एन IMEI वाज बैकिंग अप, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो मैं जब हरियाणा पुलिस में काम कर रहा था तो लाइफ में मेंटोर्स होते हैं। जैसे हमारे लिए आगरा में जब शुरुआत करी तो कमल सक्सेना सर थे जिन्होंने वो विजन किया इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को। हरियाणा पुलिस में काम कर रहे थे तो आलोक सर हैं, आलोक मित्तल सर, अब तो ही इज ADG नाउ। वो उस समय जॉइंट कमिश्नर होते थे और फिर कमिश्नर हुए, फिर IG हुए गुड़गांव में। तो हम उनसे मिले और उनके लिए हमने साइबर सेल को ट्रेन किया, केसेस बनाए। वो बहुत विजनरी थे साइबर को लेके, तो वो बहुत काम करते थे। मुझे हरियाणा पुलिस एकेडमी भेजा, वहां मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे, सेट कि भाई रक्षित टंडन तुम कुछ ऐसा बनाओ कि तुम्हारी फोटोकॉपी बन जाए। तो अच्छा, हमारा क्या था कि ये जून जुलाई वाला जो टाइम होता है ना, सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, तो मेरे पे काम ही नहीं होता था। मैं कहाँ जाऊं जून जुलाई में, क्या करूं? तो पता नहीं वो कहाँ से सर को, आलोक सर को एक क्रिएटिव आइडिया आया। बोले एक काम करते हैं, समर इंटर्नशिप करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स लाएंगे, तुम उनको ट्रेन करो, उनको मोटिवेट करो इंडस्ट्री में आने के लिए। एंड दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्टेड इन 2013। वी हैड 22 interns. ओके 2014 we had 50 interns. 2015 we had 100. 1600, 1700, 1800, 1900। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो 450। और ओके 2021 में कमिश्नर साहब बोले रक्षित किसी को मना नहीं करना है, ये बड़ा बुरा समय निकला है, बच्चों पे काम नहीं है, बच्चे ऑनलाइन परेशान हो गए, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। बोले कितनी एप्लीकेशन है? मैंने साहब 5800। बोले सबको बुला लो। मैं ऐसे शॉक था, मैं डर गया। मैंने सर लास्ट ईयर 450, और मैंने नाम दिया था, अगर आप देखोगे हैशटैग वगैरह, तो मैं बच्चों को राक्षसों की सेना बोलता था। ओके लेकिन गौरव जी, इस काम से जो मुझे गुड़गांव पुलिस ने तो बहुत सपोर्ट किया और नाम मिला वो अलग है। हमने ये रेप्लिकेट किया हैदराबाद सिटी पुलिस में, और फिर उसको कई पुलिस ने मॉडल्स बनाया, अच्छी बात है। लेकिन जो मुझे गर्व की बात है बताने में, वो 2013 से जो हमने शुरू किया है, तो जो सक्सेस स्टोरीज है ना, मतलब वो नाम बने हैं इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी में। हाँ मतलब हर इंटर्नशिप से ले लोगे तो यू विल फाइंड जेम्स राइट नाउ, जो अपने आप में सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें आपको बुलाना चाहिए। जैसे हमारे 2013 के इंटर्न है आनंद प्रकाश, बैंगलोर में। ही इज द टॉप बग बाउंटी हंटर इन द कंट्री, ओके मतलब हाईएस्ट पेड बग बाउंटी। और ऐसे बहुत नाम है हमारे 2014 बैच में, कई ऐसे स्टार्स हैं जो आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जैसे नीतीश है, रचिता है और अनमोल हैं, बहुत बच्चे हैं। तो हर बैच में मुझे बच्चों के नाम याद है जिन्होंने आज हमारे बिल्कुल गर्व से, जैसे कहते हैं ना, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। मेरा माई इंटर्न्स आर वर्किंग इन द पुलिस, दे हैव जॉइंड द पुलिस, they got a job as a consultant in the police. So these kind of gems are there, and the story is continuing. और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो मेंटोर वाला रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप मेरी इंटर्नशिप देखोगे तो एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है वो। मैं सारे टॉप एक्सपर्ट्स को बुला के लाता हूँ, वो दीपक कुमार हो, D3 हो, मिस्टर ऊप्स हो, हमारे संतोष खटसरे सर हो, दिनेश ओब्रेजा सर हो, आपके रितेश भाटिया हो, निराली हो। मैं हर फील्ड के जो जेम्स हैं उनको लाता हूं, वो इनकी मेंटोरशिप करते हैं। मैं तो बस वो धागा बन के खड़ा हो जाता हूं कि भैया चलो तुम लोगों को देश के लिए कुछ करना है। और जो नेगेटिव काम कर रहे हो, मेरे पास जो मेरा CTO है ना, वो खुद कहता है, जो मेरी कंपनी में CTO है,
वो खुद कहता है कि अगर मैंने इंटर्नशिप नहीं करी होती तो मैं कोई जेल में पड़ा होता, मैं कुछ गलत काम कर बैठता। वो होते ना ब्लैक हैट की जो गाइडेंस सोच बहुत होती है। जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, अब अच्छा सुनिए, इसमें भी अचीवमेंट कब हुआ। हमें इंडियन एयरफोर्स से फोन आता है, ये है 2018-19 वाली इंटर्नशिप। इंडियन एयरफोर्स नॉमिनेट करना चाहता है 5 एयरफोर्स वॉरियर्स आपकी इंटर्नशिप के लिए। तो वो मतलब, और वो एमओडी से परमिशन लेके आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो आप इमेजिन करिए, मेरे 100 बच्चे बैठे हुए हैं, जो मिक्स्ड क्राउड होता था। आई यूज टू टेक ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट। वो बिल्कुल अनटेम्ड बैठे हुए कॉन्फ्रेंस रूम में। और एक वो होता था एक फियर कि आप पुलिस कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे और सेंटर चेयर में रक्षित सर बैठे और पीछे हरियाणा पुलिस का लोगो लगा हुआ है, 2 बार गनर खड़े हुए हैं, और हम डिसिप्लिन रखते थे। और आप सोचो, उसी गैदरिंग में हमारे रिस्पेक्टेड 5 एयरफोर्स वॉरियर्स हमारे साथ इंटर्नशिप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे 1 महीने की। 9 to 5 होती थी, स्ट्रिक्ट बिल्कुल। तो ये हमारी इंटर्नशिप के लिए बहुत बड़ा फ्लैग था कि हमारे को वो नॉम, क्योंकि एक्चुअली वी वर गिविंग एंड वी आर गिविंग क्वालिटी। वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस इंटर्नशिप मॉड्यूल। और इस बार तो मजा ही आ गया, 5800। अरे वो तो ह्यूज बहुत ही बड़ा आर्मी, नंबर है, ह्यूज यस। आर्मी। एंड अच्छा, you can see whenever you get time, just read the hashtags GPCSSI 2020 and 21. You नहीं नहीं, will, आई हैव फॉलोड यू, आई हैव सीन ऑल दिस you will दैट। see all my interns, either they started a community, either they started taking awareness program, and that is what the whole idea is, to make a cyber सुरक्षित भारत। और ये बच्चे, मैं, ये आप सोचो 5800 की अगर मैं क्लासिफिकेशन दूं ना, तो हिंदुस्तान और वर्ल्ड का कोई कोना नहीं बचा जहां से बच्चे नहीं आए। मतलब इंटरनेशनली बच्चे आते हैं हमारे पास। तो वो कहीं बहुत ना कहीं सही। बाहर जा रहा है, इट इज स्प्रेडिंग। हाँ, आपने जैसे कवर किया कि जब ये इंटर्नशिप शुरू किया और मतलब आपको बोला गया था कि रक्षित टंडन की कॉपी बनानी है, तो आज के बच्चों को अगर रक्षित टंडन बनना है तो क्या एडवाइस देंगे आप? नहीं नहीं भाई, रक्षित टंडन ना बने, उनसे भी बेटर बने। और कॉपी से मतलब ये था कि दे वांटेड मोर एंड मोर पीपल हु कैन लीड, क्या हु कैन डू बोथ द वर्क। एक तरफ आप अब क्राइम को बचा रहे हो बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, और एक तरफ आप उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एम्पावर कर रहे हो टू ब्रेक द चेन। तो वो था। और मैं ये कहूंगा कि आप मुझसे बेटर बने। अब तो अपॉर्चुनिटीज और खुल रही हैं। यू हैव सो वंडरफुल ट्रेनर्स, यू हैव सो वंडरफुल कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। टुडे आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ सो मेनी यूनिवर्सिटीज डिजाइनिंग bachelor's and master's programs in cybersecurity. Me at Hacker Shala also, in my private company also, the vision is very clear कि मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, मैं आपको काम भी दिला रहा हूँ, और मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ कि देखो इंडस्ट्री सामने रखी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एआई है, फोरेंसिक्स है, देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि कोई सोचेगा नहीं साहब मैथ्स वाला ही आ सकता है, आर्ट्स वाला ही आ सकता है। नहीं। और एक ग्रैटिट्यूड रखो नॉलेज के लिए, अपने हर मेंटोर के लिए, और लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। और एक फीलिंग जो होती है कि भाई जैसे आज हमारे एयरफोर्स हैं, आर्मी है, डिफेंस है, पुलिस है, ये लोग एक यूनिफॉर्म पहन के अपने देश को बचाते हैं। तो हम लोग बिना यूनिफॉर्म के हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है, जो आने वाला समय है, जिस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं कि कोई ड्रोन से भी बम फेंक रहा है, कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैक करके आपकी बिजली बंद कर सकता है, कोई आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके आपके वैक्सीन के फॉर्मूले चुरा सकता है, कोई आपका आधार कार्ड का डेटा चुरा के कोई क्राइम कर सकता है। तो हमें अब डिफेंस की भी ज़रूरत है, ऑफेंस की भी ज़रूरत है। और ये दोनों फ्रेमवर्क्स को बनाने के लिए हमें, ये जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जिनके लिए अब आगे अपॉर्चुनिटीज रखी हुई है टू गेट इन टू द इंडस्ट्री, एंड हाई टाइड इंडस्ट्री राइट नाउ। एंड लेट मी टेल यू गाइस, हम लोग तो नहीं, हम तो सैलरी वाले नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर यू गेट वेरी गुड सैलरीज ऑल्सो, वेरी गुड सैलरी। आज भी जो हमें केस करके आ रहे हैं, उसमें 2 हैकर्स ने बहुत छोटे से समय में बहुत बड़ा अमाउंट कमा लिया, लेकिन आज उनकी जिंदगी बर्बाद है। वो जेल जाएंगे, उनका ये सब पैसा बेकार हो गया। और आज आप इज्जत से अच्छी सैलरी कमाते हो तो आप अच्छे से खर्च भी करते हो। सही बात बोल रहे हैं सर। तो आप कम कमाए लेकिन इज्जत से खर्च करो। और कम मतलब इन द सेंस इट इज नॉट कम बॉस, यू आर गेटिंग गुड सैलरीज। The companies are opening up. They are looking for good cyber professionals who can think like a hacker but be a law-abiding person. So be better than Rakshit Tandon. Don't try to imitate anybody. सबकी अपनी अपनी एक प्रोफाइल होती है और कभी हारना नहीं चाहिए। हाँ, ये कहूंगा अपने एक्सपीरियंस से
कि एक फेज आया था जब मैं भी बहुत लो डाउन था, बहुत अंदर नहीं समझ में आ रहा था मेरे करियर में क्या होगा। मैंने भी बहुत सारे काम किए थे, मेरी मदर ने पता नहीं कितनी पत्रियां दिखाई थी, मुझे कितनी अंगूठियां पहनाई थी, और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, आई ब्रेक फ्री, आई सेड मुझे कुछ नहीं पहनना, मैं देखता हूँ। एंड आई वर्क हार्ड बॉस, आई वर्क वेरी हार्ड। व्हेन आई वाज गेटिंग अ 400 रुपीज सैलरी, आई वाज वर्किंग 18 आवर्स विदाउट कंप्लेंट कि मुझे 400 क्यों मिल रहा है, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास था कि वो 400 अपने आप ये बदल के 800 करेंगे, 800 को 1200 करेंगे, 1200 को 3200 करेंगे, और 3200 को उन्होंने 25,000 किया, ये देखते हुए कि मैं उनके लिए उतना वर्थ था। अब वो बात अलग है कि उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई और मुझे लौट के फिर वापस अपना एक शुरुआत करनी पड़ी। वो एक लेकिन बहुत जरूरी है लाइफ में, और कुछ भी हो जाए बस आपको फोकस रहना है, माइंडसेट चेंज नहीं करना है और आगे बढ़ते ही रहना है। और देना है, कम्युनिटी को देना है। कम्युनिटी को देना है, वो तो एक बहुत बड़ी चीज है, शानदार चीज है जो सब कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, इससे पहले मैं फिर रैपिड फायर राउंड में जाएंगे जिसमें छोटे छोटे आंसर और आपको वो हैपर जीतने के लिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। मतलब हम जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं आपको, मतलब कोई ऐसा केस जिसमें आप फेल हुए और आपको बुरा लगा पर आपने उसको फिर ओवरकम किया, कोई ऐसा? बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं वो ट्राई करते हैं फिर हो नहीं पाता है एंड देन दे शैटर्ड की नहीं। तो मतलब कुछ ऐसा केस कोई ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि बुरा लगा कि ये सोल्व होना चाहिए था पर चलो नहीं हो पाया? होते हैं ऐसे बहुत सारे केस। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बट लेट मी टेल यू फर्स्ट, लेट मी टेल यू द रोल आई प्ले। आई प्ले अ प्योर एडवाइजरी and knowledge sharing role. So I never take anything in my hands, and which is I'm not authorized to also, because either you join the forces. So I got many chances to join the forces, but I said no, I want to be a freelancer so that I can give my knowledge to every state. I should not be only tied up to one state कि okay मैं job करता हूँ, I'm a deputy SP or an inspector in Uttar Pradesh police, so I can't move out, I can't go to Telangana, I can't go to Hyderabad or something like that. तो मेरा एडवाइजरी रोल रहा गौरव जी, तो उसमें जो भी केसेस आते हैं वो एडवाइजरी लेवल पे आए कि सर ये इशू है, ऐसे ट्रेस करना है, ये चैलेंज है, तो वो मैंने कर दिया। कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम नहीं कर पाते, डेड एंड हो जाता है, लेकिन अभी लास्ट मतलब उन्हीं से सीख सीख के अब हम लोगों ने कुछ ऐसे क्या कहूँगा टेक्निक्स कह लीजिए या नॉलेज कह लीजिए गेन कर लिए कि वो जो चैलेंजेस हमारे साथ आए जो हम नहीं कर पाए, वी कुड नॉट रीच टू द अल्टीमेट गोल, वो अब आज कर लेते हैं। तो कई बार तो मुझे फेलियर और सक्सेस का भी पता नहीं चलता है कि आप ऑफिसर हो, आपने कहा रक्षित ये मामला आया है, क्या करना है इसमें, मैंने सर ये 1 2 3 बोले ओके, फिर मैंने पूछा नहीं क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो 10 कॉल और आ चुके हैं तब तक, और वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैंने जो अपनी एडवाइस देनी थी वो दे दी। हाँ, देयर आर सम गुड ऑफिसर्स जो रिवर्ट बैक करते हैं, बोले थैंक यू रक्षित, तुम्हारी वजह से ये सॉल्व हो गया, थैंक यू, और आप एक एप्रिसिएशन लेटर आ जाता है या एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ जाता है। तो ये रोल रहा है। तो मैं हाँ है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मतलब अब तो मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ कि भाई डिजिटल फुटप्रिंट एक ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है स्पेस में। हाउ गुड यू आर वो आपके ऊपर है उसे निकालना। ओके, थैंक यू सर। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में जिसमें मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको लंबे नहीं, फटाफट और क्विकली आंसर देने हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करें सर? डन। ओके, आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है और क्यों? My wife inspires me, and just because कि जो उसके अंदर एक नॉलेज का ना एक वो है हर चीज में, मतलब यू कैन टॉक टू हर ऑन एनी सब्जेक्ट, साइंस बायोलॉजी, उसके फंडामेंटल्स, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं। और मैं कंपटीशन सा रहता है यार, ये इतना जानती हो मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरे को वो इंस्पायर करता है कि हाँ भाई करना है करना है। तो देयर इज नो वर्ड कॉल फेलियर उसके सामने अगर हम बात करें। ओके, आपके स्कूल के टाइम पे आपको सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। ओके, और आज 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 आप उसी में बात करते हैं, और आई। आज मैं उसी में काम करता हूँ, तो वो ये देखिए आयरनी होती है, ये आयरनी है। ओके, और आपको सबसे ज्यादा स्केयर क्या करती है चीज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? मुझे ना आई डोंट लाइक evils like jealousy, hatred, है ना, backbiting. I want things very smooth and transparent. मुझे ना टेंशन वर्ड नहीं चाहिए किसी से भी. So if you are angry with me, you come and tell me, and I'll say sorry to you. That I'm happy with that.
बट आई डोंट वांट कि मुझे वो चीज जेलसीज, इविलनेस, ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। ओके, फेयर इनफ, थैंक यू। सो एक आपके होम टाउन के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? अरे सर, वहाँ हमारे आगरा होम टाउन की सबसे बड़ी बात ये है कि वो है, ताजमहल है ना वहाँ पे, है ना, वो प्यार की नगरी है। वहाँ आप एक छोर से दूसरे छोर तक निकल जाए तो वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ, आप अपने उसमें रहते हैं, सब एक दूसरे से कंसर्न रहते हैं, हम एक जॉइंट फैमिली में रहे। हम अपनी जो कॉलोनी जहाँ हम रहते थे, वहाँ के एक एक सज्जन जो हैं, जिस तरह से वो लोग कनेक्ट करते थे, तो वो मुझे उस शहर आगरा के बारे में बहुत पसंद है साहब। ओके, सही। और उसके बाद आपको साइबर गुरु का अवार्ड महाराष्ट्र में मिला। अगर मैं पूछूं आपसे, आगरा पेठे या फिर महाराष्ट्र का मुंबई वड़ा पाव? मेरे को दोनों बहुत पसंद है साहब। मुझे अगर आगरा की आज भी बेड़ई बहुत पसंद है, वहाँ का जो स्टाइल होता है नाश्ते का, जलेबी कचौड़ी बेड़ई का। और मैं मुंबई जाता हूँ, मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है साहब। अरे, तो एक करना हो तो मतलब जहां पे हैं हम वैसे। ओके। हाँ, मतलब मैं हर सिटी में जहाँ होता है उनकी जो फेवरेट रेसिपीज हैं, जैसे साउथ में जाता हूँ तो आई लव हैविंग डोसाज एंड उत्तपम, और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो, तो आई इन दैट वेज आई एम वेरी ओपन, आई एडजस्ट माई सेल्फ टू एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड फूड। ओके, आपका जो इंफोसेक का एक्सपीरियंस है उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे आप? स्टिल लर्निंग, स्टिल लर्निंग। ओके, और ऐसी कोई वियर्ड रिक्वेस्ट जो लोग आपको करते रहते हैं आपके प्रोफेशन में? अरे साहब, मेरा गर्ल बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा है, रक्षित सर आप हैकर हो, उनकी आईडी हैक करके मुझे बता दो वो कर क्या रहे हैं। मैंने, भाई मेरे को हैकिंग का एज भी नहीं आता, मैं साइबर सेफ्टी में काम करता हूँ। तो ऐसे बहुत आते हैं। रक्षित टंडन बोले, आप तो बहुत बड़े हैकर हैं। मैंने कहा, मेरे बिटकॉइन चोरी हो गए, हैक करके वापस करा दो। मैंने, साहब धन्यवाद। बहुत वियर्ड रिक्वेस्ट आती है। ओके, आपके साथ कभी हैकिंग हुई है या मतलब किसी ने आपको अटेम्प्ट किया है? अटैक्स तो बहुत अटैक होते हैं, बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं। और आज से नहीं, मतलब द डे यू डू समथिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो और फिर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया से चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, तो जिस दिन भी आप कुछ करेंगे तो होते हैं अटैक्स, होते हैं, खूब अटैक्स होते हैं। ओके। अनगिनत होते हैं, और अनगिनत अनगिनत ट्राइज होते हैं, हर तरह से। कोई सक्सेसफुल हुआ मतलब आज मैं तक? इंटर्नशिप, नहीं नहीं नहीं, अब वो नहीं। देखो, अगर नहीं, ऐसा होता है, देखो, नथिंग इज 100%। मैं ये नहीं हम्म। कह सकता कि मैं हैक नहीं हो सकता, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। हम्म। तो हमारी हमारी फर्टिनिटी अब इतनी बड़ी हो गई ना, फ्रेटर्निटी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे मेल किया, रक्षित सर मैं आपका इंटर्न था, मैं आपकी वेबसाइट चेक कर रहा था, उसमें ये बग निकला। उसने हम्म। पूरी लिस्ट बना के स्क्रीनशॉट के साथ मुझे भेजी। तो मैंने हम्म। उसको एक्नॉलेज किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने फौरन अपनी टीम को भी कहा, मैंने, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, हम हम्म। दुनिया को वेबसाइट की सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो वो मेरे बंदे ने बताया, बोले नहीं सर, ये आपके पे लागू नहीं होता है, बिकॉज यू आर ऑन अ डिफरेंट डोमेन, और ये वो अलग सर्वर को देख रहा है, तो हमारा सर्वर नहीं था, बट स्टिल उसने अटेम्प्ट किया। एंड दैट वाज अ गुड थिंग, दैट ही ओनली केम एंड टोल्ड मी कि सर ये देखो प्रॉब्लम है। तो अच्छा लगता है। ओके। और आज के टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पासवर्ड्स हैं, तो हाउ यू स्टिल आर यू यूजिंग एनी टूल्स टू मैनेज देम और स्टिल यू आर I रिलाइंग ऑन don't योर use मेमोरी? tools. I don't use tools. I use this. And there was a time, 2018 में मैं बताता हूँ, I used to use some these kind of keychains and things like that where you used to store them. So I found out that one of my IDs, that same email ID was breached in a data breach. तो 2018-19 में ही पता चल गया था। तो वो दिन है, आज का दिन है, तो मैंने फिर यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया पासवर्ड्स पे। और मैं सिखाता भी हूँ, वो टेक्निक्स भी सिखाता हूँ। लोग कहते हैं साहब याद कैसे रखें, तो मैं एक चीज़ आपको नहीं पता होगी मेरे बारे में, लेकिन मैं अब बता देता हूँ, क्योंकि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, गजल्स का बहुत शौक है। और मैं अपने स्कूल टाइम में बड़ा फेमस सिंगर हुआ करता था, मेरे को संगीत कला अकेडमी से अवार्ड मिला हुआ है। और तो खैर, मेरे को गाने बहुत पसंद थे, तो मैंने क्या करना शुरू किया कि जो गाने होते हैं उनके जो सिलेबल्स होते हैं या लेटर्स होते हैं, उनके साथ प्ले करना शुरू किया। तो आप नॉर्मल पासवर्ड बना लेते हो, कोई भी आदमी नाम सोच लेता है, वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत फेमस गाना है, मेरी फेमस गजल है, तो मैंने उसकी जो पहले सिलेबल्स हैं उनको अपर लोअर के साथ प्ले किया, और उनका एक तो इट बिकम्स अ फ्रेज। तो हम्म। भूलोगे भी नहीं, क्योंकि मुझे तो वो गाना मुंह जबानी रटा हुआ है, तो मैं जब उंगलियां चलाता हूँ, और अच्छा हाँ, हम लोगों ने, ये मैं बच्चों को भी सिखाना चाहूंगा, हम लोग जब कंप्यूटर सीख रहे थे तो हमें
लैब में एकदम से तो कुछ होता नहीं है सिखाने के लिए प्रोग्रामिंग, शुरू में तो हमें एक टाइपिंग ट्यूटर दिया जाता था और उस पे स्पीड आती है, एरर्स आते हैं और मुश्किल होता जाता है लेवल 1 में AEFOQ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें वो इतना पसंद आया तो हमने एक टारगेट बना लिया था, हमारी स्पीड आ गई 168 वर्ड्स पर मिनट कि आप मेरे को यहाँ पे ब्लाइंड कर दो और बोलना शुरू करो और मेरे बस एक बार हाथ रखवा दो कीबोर्ड पे, जैसे पियानो बजाते हैं ना लोग। हाँ हाँ। तो मेरी उंगलियां भी थोड़ी भगवान की दुआ से तेज चलती हैं, तो मैंने फिर पासवर्ड्स ना बड़े बड़े जो होते हैं फ्रेजेस में लेना शुरू कर दिया। मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे अपने फेवरेट गाने हैं, मेरी अपनी एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, और उसी से काम चल रहा है। तो अब मैंने बता दिया, हैकर्स को पता चल गया है कि अब पासवर्ड अगर क्रैक करना है। मुझे ये लग रहा है कि आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे या नहीं, क्योंकि वो मेरे एक्चुअली लास्ट जो 10th क्वेश्चन है वही है, क्योंकि हमें सबको पता है आपको म्यूजिक का बहुत शौक है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा एक गाना है जो आप सारा दिन सुन सकते हैं? जगजीत सिंह की साहब एक गजल है और वो बचपन की याद दिलाती है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या और बात वो है। नज़म और गजल है और वो बहुत दिल के करीब है, क्योंकि वो सुनते हैं ना तो आप व्हेन यू कनेक्ट, मतलब आज की जो लाइफ है हसल बसल है, एंड देन लुक एट अ चाइल्ड हु इज प्लेइंग, वो इनोसेंट होता है। तो ओके। वो मेरी फेवरेट हमेशा है और मैं पता नहीं कितनी बार सुन सकता हूँ। अरे सर, मजा आ गया आपसे बात करके। और ये सेम गौरव जी, बहुत अच्छा लगा, आपने पता नहीं क्या क्या बातें निकलवा ली हमसे। अरे मैं मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि ये लोगों को आपके बारे में ये सब बातें यहीं से पता चलें। दीज आर दैट इज व्हाई दिस बहुत इंफोसेक बढ़िया, बहुत टेल्स। अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, बल्कि जब अभी हमने रितेश भाई को सुना था तो बड़ा अच्छा लगा था सुन के। तो फिर आपका इनविटेशन ही आ गया, हम बोले चलो बिल्कुल, और आज 2 बार हमें कैंसिल करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन फाइनली वी गॉट दिस चांस टू टॉक विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन आंसर किए और आपका ये रैपिड फायर राउंड तो अमेजिंग, मतलब दिल के छू गया वो। अभी हैम्पर ना भेजे तो हो नहीं सकता है, आप विन करते हैं ये हैम्पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for joining us, and I hope the audience will love this conversation very much. थैंक यू सो मच। Thank you, sir.